बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा तेह मोहकलिलम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतश्च च तदा ते मोहकलिलम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् तव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा यदा when ते your मोह मोह of illusion of illusion kalilam कलिलम् dense forest forest buddhi बुद्धिः transcendental service with intelligence transcendental service with intelligence vyatitarishati व्यतितरिष्यति surpasses surpasses tada tada at that time gantasi gantasi you shall go nirvedam निर्वेदम shrotavyasya श्रोतव्यस्य with all that is to be heard towards all that is heard shrutasya श्रुतस्य all that is already heard all that is already heard cha also translation by Srila Prabhupada ki jai when your intelligence has passed out when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion of the dense forest of delusion you shall become indifferent to all that has been to all that has been heard heard and all that is to be heard. and all that is to be heard. Right. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. कौन जय. read करेगा? माताजी मैं करूं? करो ना. There are many good examples in the lives of great devotees of Lord, of those who have become indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. Even though an experienced Brahmana, Sri Madhavendra Puri, a great devotee and Acharya, in the line of the devotees says, O my prayers 3 times a day, all glory to you. O Bating, I offer my obeisances unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respect. Now, wherever I sit, I can remember the great descendants of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. The Vedic rites and rituals are imperative for the neophytes.
comprehending all kinds of prayers 3 times a day, taking bath early in the morning, offering respect to the forefathers, etc. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes indifferent of all these regulative principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in revelated scriptures. And similarly, if one has not understand that the purpose of the Vedas is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. Persons in Krishna consciousness transcend the limit of Sabda Brahmana or the range of Vedas and Upanishads. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़। यहाँ पे यदा ते मोह कलिलम, the first line itself says when the illusion is like dense forest, when your intelligence has passed out of dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं बताऊं, ये श्लोक आप सीखोगे ना, you will come out of all the misunderstandings you have had in your entire life. आसपास की चीजें देखकर जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करना हमने सीखा है, गलत चीजों को देखकर जिसको हम सही समझ बैठे हैं और हमने उसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया है, हम उस चीज को अनलर्न कर पाएंगे बड़ी आसानी से। भगवत गीता इज ऑल अबाउट अनलर्निंग व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। इतनी सारी चीजें आसपास रहती है कि आपको जो भी आप डे टू डे लाइफ में जन्मे हो, माँ की कोख में हो, तब से आप जो सीखते आए हो, और कुछ चीजें अच्छी भी नहीं है, कुछ चीजें बस हो रही है भौतिक जगत में, आपको अच्छी नहीं लग रही है, बस आप देख कर भी एब्जॉर्ब कर रहे हो उसको। कुछ मूवीज में देख लेते हो, कुछ वीडियोस में देख लेते हो, कुछ आप कहीं और से एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो ये सारी चीजें अनलर्न करना बहुत जरूरी होता है। अनलर्न, तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, जब तुम्हारा इंटेलिजेंस है वो इस डेंस फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल, डेंस जंगल ऑफ डिल्यूजन, बहुत ज्यादा डिल्यूजन आ गया है, जो नहीं है वो है और जो है वो नहीं है, ऐसे लगता है। जैसे मॉल में सारे कपड़े हैं, वही ट्रुथ है, या फिर बड़ी बड़ी कार्स है, वही ट्रुथ है, बड़े बड़े घर है, वही ट्रुथ है। तो जो नहीं है वो है ऐसे लगने लगता है, और जो है कृष्ण, कृष्ण है, हृदय में परमात्मा है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास है, हमने भागवतम पढ़ के कृष्ण की सेवा करनी है, भगवत गीता पढ़ के कृष्ण की सेवा करनी है। तो जो है वो नहीं है ऐसे लगना लगता है। डिल्यूजन समझ में आ रहा है? डिल्यूजन मतलब जो नहीं है वो सच लगने लगता है, और जो सच है वो है ही नहीं ऐसे लगने लगता है। तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा जंगल हमारे दिमाग में उग चुका होता है। सो जब आपका इंटेलिजेंस इस बड़े जंगल से बाहर निकलता है, तब आप बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हो, जो भी सुना है और जो भी आगे जाके सुनने वाले हो उससे इंडिफरेंट हो जाते। मतलब जिस बच्चे ने बचपन में कुछ गलत सुना है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे जाके और हजारों करोड़ों लोग कुछ गलत बात करने वाले हैं, उससे भी वो इनडिफरेंट हो जाता है। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, जो नहीं है उसको है बताने वाले लोग मिलेंगे, और जो है उसको नहीं है बोलने वाले लोग मिलेंगे, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। So to get rid of whatever you have learned is most important, and learn what is the truth is even more important. अब जो सच है वो हम तब तक सीख नहीं सकते जब तक हमने झूठ सीखा हुआ उसको अनलर्न नहीं करते। अंडरस्टूड? हमने झूठ सीखा है दुनिया से, जंक फूड खाना हमने दुनिया से सीखा है, आसपास दुनिया खाती है तो हमें मन करता है जंक फूड खाने का, है या ना? बच्चे सुन रहे हैं सारे? yes. मैं आपको आपके बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ। आसपास दुनिया को देखा है पैकेट के अंदर का फूड खाते हुए,
तो मन करता है पैकेट की फूड, अंदर का फूड खाने का। है यहाँ पे वसुधा? यस माता जी। तो आपने देखा है ना आसपास लोग तो यही कर रहे हैं, अपना फ्री टाइम मॉल हाँ में माता जी। जाते हैं, पार्टीज करते हैं तो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, और जब उनको स्नैकिंग करनी होती है तो चिप्स खरीद के लाते हैं बाहर से, है ना? हाँ माता तो जी। ये लर्न किया हुआ है, ये हमने सीखा हुआ है, बट ये सब झूठ है, मिथ्या है। वाई? बिकॉज ये आपको कहीं से भी, शरीर को भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। आत्मा तो दूर की बात, भूल ही जाओ आत्मा, लेकिन शरीर को भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये अनलर्न करना है। आपने तो एब्जॉर्ब किया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आंखें खुल ली है, आपने देखा, खाया ना, लोगों हाँ को माता जी। करते हुए देखा, लोगों को हैप्पी होते हुए देखा, तो आपको क्या लगा? इन चीजों से हैप्पीनेस कनेक्टेड है, तो आपने लर्न किया। बट जब आपका इंटेलिजेंस, ये सारे कंफ्यूजन है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, ये डिल्यूजन है। अगर अच्छा खाना होता वो, तो कृष्णा ने बोलना था भागवतम में, भगवत गीता में, कि पैकेटेड फूड। लेकिन फिर भागवतम में ऐसे नहीं लिखते ना, कलयुग आएगा जहां पे बासी बासी खाना अच्छे पैकेट में बेचा जाएगा, महंगा बेचा जाएगा। भागवतम में क्या लिखा है? ऐसा कलयुग आएगा जहां पे फंसाने वाले लोग बासी बासी खाना इतने अच्छे से ये करेंगे, डेकोरेट करेंगे, कि लोग बासी खाना खुश होकर खाएंगे, और बासी खाना ही सबसे महंगा होगा। आज वही हो रहा है, फ्रोजन फूड आप खाते हो बाहर जाकर, स्माइलीज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, फिर आप सब कुछ जितना भी फ्रोजन फूड बहुत बासी होता है, पैकेट के अंदर के चिप्स बहुत बासी होते हैं, स्टील के होते हैं, लेकिन उसका डेकोरेशन इतना अच्छा है, पैकेजिंग इतना अच्छा है, उसके ऊपर फलाना टिमकाना कोई फूड एक्ट लिखी जाती है, फूड टेस्टिंग से बाहर निकला है, अच्छा है, हेल्दी है, ऐसे करके बेचते हैं ये लोग। और हमें लगता है कि हाँ चलो, इतने से ही पैसे, ज्यादा नहीं है, इससे कोई जेब खाली नहीं हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये सारा डिल्यूजन है। जो गलत है उसको अच्छा बोलकर पोर्ट्रे किया जा रहा है, और जो एक्चुअल में है उसको तो पूरा एब्सेंट ही कर दिया है। मतलब नो बडी इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा इन मॉल्स, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा इन मूवी थिएटर्स। किसी भी आप बर्गर वाले दुकान पे जाओ, पिज्जा वाले दुकान पे जाओ, या फिर जहाँ पे पैकेट वाला खाना मिलता है वहां पे जाओ, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा, नो बडी इज इवन गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, नॉट इवन इंट्रोड्यूसिंग यू टू कृष्णा। नाउ दैट इज डिल्यूजन। सो यू बिकम, ये सारे डिल्यूजन से बाहर आ जाते हो आप एक बार, तो आप इनडिफरेंट हो जाते हो, जो भी सुना है, देखा है, और जो आगे जाकर आप सुनने वाले हो और देखने वाले हो। ट्रांसलेशन समझ में आई? देखो, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, आगे जाकर बहुत ज्यादा श्रवणम करना है आपने गलत गलत चीजों का, उससे अपने आप को बचाना कैसे? भगवत गीता से। ठीक है? पॉपॉट में देर आर माता जी मेनी। हाँ जी, माता जी मुझे डाउट है। हम पॉपॉट करें, एंड में ले। माता जी मुझे समझ। ओके माता जी। पॉपॉट में देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं, हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है? There are many good examples in the lives of great devotees of Lord, of those who became indifferent to rituals of Vedas simply by devotional service of Lord. देखो प्रभुपाद ने कितने हाई स्टैंडर्ड से शुरू किया, हमने तो डे टू डे एक्टिविटी से शुरू किया, प्रभुपाद ने सीधा भगवान के रिलेटेड एक्टिविटीज से ही कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि शास्त्रों में इतने सारे डिवोटीज है जो वेद शास्त्र, जैसे राजा प्राचीन भारी शास्त्रों को, राजा ये जो है प्राचीन भारी ही थे, हाँ, राजा प्राचीन भारी शास्त्रों का यूज कर रहे थे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन कई सारे भक्त हैं जिन्होंने शास्त्रों को कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे, ग्रेट डिवोटीज है, जो शास्त्रों का फायदा मटेरियल बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज है लेकिन कर नहीं रहे हैं। आप बताओ, इस्कॉन में कोई भी यज्ञ करने बैठता है लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए? क्या किसी के पास ज्ञान नहीं है? किसी को पता नहीं है यज्ञ कैसे करना है? कर सकते हैं ना?
सारा ज्ञान तो है, सबको पता है शास्त्र पढ़ने कैसे हैं, अप्लाई कैसे करने हैं। ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद तो आप सब सारे यज्ञ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आपको कोई गौड़ीय संप्रदाय में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ऐसे कोई यज्ञ करता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या फिर धन या फिर किसी और चीज को प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हुए कोई इंसान नहीं दिखेगा। वो हरे कृष्णा बोलते बोलते रोएगा, हरे कृष्णा बोलते 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 हंसेगा, लेकिन वेद शास्त्रों को ऐसी तरीके से यूज नहीं करेगा। सो व्हेन अ पर्सन फैक्चुअली अंडरस्टैंड्स कृष्णा एंड his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to rituals or fruitive activities. जिस दिन एक इंसान फैक्चुअली कृष्ण को समझ लेता है और उसका रिश्ता कृष्ण के साथ समझ लेता है। अभी मुझे पता नहीं आपने जितना भागवतम सुना है, आप में से कितने लोगों को अपना रिश्ता रिवील हुआ है। वी आर एट द फोर्थ कैंटो ऑफ भागवतम, 12वें कैंटो तक हमने पहुंचना है। किसी किसी को 11th कैंटो में रिवील होगा, किसी को 9th में, किसी किसी को अभी शिव जी के जो रुद्र गीता हमने गाई थी उसमें रिवील होगा। हर एक का अपना अपना रिश्ता बनेगा कृष्णा के साथ, लेकिन बनेगा, भागवतम के एंड तक बनेगा। तो जिस इंसान को कृष्ण समझ में आए, और कैसे आए, रिश्ता बनाने के बाद, क्योंकि आप रिश्तेदार को समझ सकते हो। माँ अपने बेटे को समझ सकती है, पति अपने पत्नी को समझ सकता है, पत्नी सास को समझ सकती है, फिर बच्चे अपने मदर को समझ सकते हैं, फादर को समझ सकते हैं। आप रिलेटिव्स को समझ सकते हो, आप स्ट्रेंजर्स को नहीं समझ सकते। तो जब तक आपका कृष्णा से रिश्ता नहीं होता तब तक कृष्ण संपूर्ण तरीके से समझ में नहीं आते। जैसे ही आपका रिश्ता बंध जाता है कृष्ण के साथ, आपको रिवील हो जाता है, अपने आप कृष्णा रिवील कराते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता क्या है, फिर आप प्रैक्टिकली कृष्ण को समझ पाते हो। तो जब एक इंसान प्रैक्टिकली फैक्चुअली कृष्णा को समझ पाता है अपना रिश्ता पता होने के बाद, तो वो नेचुरली रिचुअल्स ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी, उसके नेचुरली वो सारे कर्म कांड से ये हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है। मतलब उसके अंदर इच्छा भी नहीं आती कोई कर्म कांड करने की। वो गलती से भी कोई ऐसी मेथड यूज नहीं करेगा जिससे कि उसके पास बहुत लक्ष्मी आ जाए, बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बड़ा घर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, या अच्छे मार्क्स आ जाए। जिस दिन कृष्ण के साथ रिश्ता फुल क्लियर हो जाता है, उस दिन ऐसे लगता है जैसे कि कृष्णा तो मेरे रिश्तेदार है, कृष्णा तो मेरे ये है वो है, उन्होंने तो देना ही देना है, उन्होंने जो सही लगता है वो देंगे, जो सही नहीं लगता वो नहीं देंगे। तो वैसे भी टैंट्रम थ्रो करके बार बार मांग के फायदा है नहीं, जो चाहिए कृष्णा को पता है। तो इस तरीके से रिचुअल में नहीं पड़ता। और उससे भी ऊपर का भक्त कहता है कि अरे मेरा तो कृष्णा के साथ ये रिश्ता है, मुझे तो पता है कृष्णा मेरे से रिलेटेड है, मैं कृष्णा से रिलेटेड हूँ, मुझे तो बस कृष्णा की सेवा करनी है, रिटर्न में कृष्णा को देना है दे, नहीं देना ना दे, मुझे तो बस सेवा करनी है। ये उससे ऊपर का भक्त कहता है। सो इवन दो एन एक्सपीरियंस्ड ब्राह्मण, अगर वो एक्सपीरियंस्ड ब्राह्मण होगा तो भी उसको रिलेशनशिप कृष्णा के साथ एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। अब ये मैकेनिकली एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है, बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिवोटीज की भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे उनको लगता है कि कृष्ण के साथ रिश्ता कभी कभी वो सिर्फ बोल बोल के क्रिएट कर सकते हैं। ये ऊपर ऊपर से नहीं आता। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और जितने भक्तों से मैंने बात की है, बड़े बड़े आचार्यों से भी जहां से मैंने उनके बुक्स पढ़े हैं, मुझे इतना पता चला है कि रिश्ता पता करने के लिए सिर्फ भागवतम हेल्प करता है। क्योंकि भागवतम में जितने भी लोग हैं, सबका कृष्णा के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। देवहूति माता का लॉर्ड कपिला के साथ रिश्ता था या नहीं था? पृथु महाराज का के साथ अर्ची का रिश्ता है या नहीं है? पृथु महाराज के बेटों का पृथु महाराज से रिश्ता है, और पृथु महाराज का कृष्णा से रिश्ता है। सबका रिश्ता है ना कृष्णा के साथ। सारे जितने भी डिवोटीज है भागवतम में, सबका रिश्ता कृष्णा के साथ है। सो जहाँ पे ओपनली कृष्ण के साथ रिश्ते ओपनली डिस्क्लोज हो रहे हैं, वो जब तक पढ़ते नहीं तब तक अपना रिश्ता डिस्क्लोज नहीं होता, वो गुह्य बन के रहता है। तो भागवतम इज लाइक अ मैजिक बुक। भागवतम इज लाइक अ मैजिक बुक। खोलो, पढ़ो, और अपना रिश्ता कृष्ण के साथ ढूंढो,
दैट्स ऑल, इतना ही काम है। ये एक बार पता चल गया तो कृष्ण परफेक्टली समझ में आते हैं, और आपको शास्त्रों को आप कभी यूज नहीं करते इंद्रिय तृप्ति के लिए। माधवेंद्र पुरी जो थे वो बहुत ग्रेट डिवोटी थे। उन्होंने कहा था कि वो माई प्रेयर्स 3 times a day, ऑल ग्लोरी टू यू, ओ बेदिंग आई ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू यू। तो माधवेंद्र पुरी बेसिकली अपनी सारी जो रिचुअल्स है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं कि संध्या वंदना जब करता हूँ, मैं 3 टाइम करता हूँ आपकी पूजा, सायंकाल भी को भी करता हूँ, दोपहर को भी करता हूँ और सुबह भी करता हूँ। तो मैं 3 बार आपको ओबेसांसेस पे करता हूँ। फिर बेदिंग आई ऑफर माई ओबेसांसेस अनटू यू। फिर स्नान के वक्त आई ऑफर माई ओबेसांसेस। ओ डेमीगॉड्स, ओ फोर फादर्स, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इनएबिलिटी टू ऑफर यू माई रिस्पेक्ट। देखा क्या कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी? माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि ओ डेमीगॉड्स, देवी देवताओं, ओ फोर फादर्स, सारे पूर्वजों, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे प्लीज माफ करो मेरी इनएबिलिटी के लिए। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है या फिर एबिलिटी नहीं है कि मैं आपको भी दंडवत प्रणाम करूं, मैं आपको भी आदर करूं। मेरे पास इतनी एबिलिटी फॉर माई इनएबिलिटी मेरे पास है नहीं। नाउ वेरेवर आई सिट आई कैन रिमेम्बर डिसेंडेंट ऑफ यदु डायनेस्टी कृष्णा। मैं कहीं पे भी बैठता हूँ ना, वहां पे मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान याद आते हैं, एनिमी ऑफ कंसा, जो कंस के शत्रु है। Thereby I can free myself from all the sinful bondage। इसलिए मैं अपने आप को आपको दंडवत ना करने के पाप से भी मुक्त कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण को याद करता हूँ। आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर मी। माधवेंद्र पुरी कह रहे, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए सफिशियंट है कि मैं कृष्ण को याद करूं, और आपको दंडवत प्रणाम ना करके अगर मेरे को पाप लग रहा है तो कृष्ण को याद करके वो मेरा पाप भी हमेशा के लिए चला जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है ये मेरे लिए वर्क करता है। यत्र क्वापि न श्रद्धा यादव कलोत्तमश्चया कंसद्विषा, स्मरम स्मरम अगम हरामि तद अलम, मन्ये किम अन्येन मी। मेरे लिए मन्ये किम अन्येन मी, ये मेरे लिए सफिशियंट है, ये मेरे लिए काफी है। मुझे स्मरम स्मरम, मैं स्मरम स्मरम करता हूँ, मैं कृष्ण का बार बार याद करता हूँ, मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी है। आ रहा है समझ में सबको? Yes, Mataji. तो माधवेंद्र पुरी की ये जो प्रेयर्स है ये हमेशा याद रखना। माधवेंद्र पुरी हमारे इसके डिसेंडेंट्स में आते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। और माधवेंद्र पुरी अगर देवी देवताओं को सॉरी बोल रहे हैं कि मैं आपको दंडवत नहीं कर सकता क्योंकि मैं हमेशा यदुवंशी कृष्ण को याद करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है इतना काफी है मुझे सारे पापों से बाहर आने के लिए, ये मेरे लिए काफी है। अगर हमारे संप्रदाय के इतने सीनियर आचार्य हमें बता रहे हैं तो हमें इतनी ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं हर देवता को खुश करने के लिए। हमारे पास कुल देवत भी बहुत होते हैं। लड़कों के पास तो फिर भी ऑप्शन है, एक बार हरि नाम ले लो, और कुल देवत का नहीं किया तो भी लड़कों को उसका पाप नहीं लगेगा। लड़कियां ससुराल में जाके उल्टा नहीं बोल पाती, वो नहीं बता सकती ससुराल वालों को कि मुझे आपके देवते की पूजा नहीं करनी, मुझे आपके गोत्र को फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं। लड़कियों को वो अथॉरिटी भी नहीं होती क्योंकि वो छोटी भी होती है, अभी अभी शादी करके आई होती है, उम्र में छोटी, ओहदे में छोटी। तो लड़कियां ये सब प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो उन्होंने, लड़कियों ने क्या करना है, जाओगे किसी और के घर पे और ये फॉलो करना पड़ा तो करो, देवी देवताओं को, कुल देवता को दंडवत करो, लेकिन हरे कृष्णा बोलो। उनको बोलो कृपा करके हमें कृष्ण भक्ति दे दो, कृपा करके हमें कृष्ण भक्ति दे दो। ऐसे करके घर वालों का भी दिल जीतना, देवताओं को भी दिल जीतना, और कृष्णा का भी दिल जीत लेना। किसी को दुखी नहीं करना, ना घर वालों का भरोसा तोड़ना है, घर वालों को बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाना है, अकड़ नहीं दिखानी कि मैं भक्त हूँ, देखो मैं सिर्फ कृष्णा का करती हूँ। लड़कियों के लिए ये बैंडविड्थ है नहीं। लड़के तो कुछ कुछ अपने घर का कल्चर बदल देते हैं, वो डिपेंड करता है लड़के की माता पिता कितनी बात सुनते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए सेफ सिस्टम है, कुछ चेंज मत करने जाओ ससुराल में। हमें कोई रिफॉर्मर बनना नहीं है ससुराल जाकर। जाओगे ससुराल,
जो गोत्र की पूजा चल रही है, जिस देव देवता की पूजा चल रही है, जिस कुल देवता की पूजा चल रही है, जाओ, बड़े रिस्पेक्ट से जाओ, एनर्जी के साथ जाओ, एंथुजियाज्म के साथ जाओ, हंसते हंसते जाओ, दंडवत करो, मन में हरे कृष्णा बोलो, बोलो मुझे भक्ति दो, मुझे कृष्ण की भक्ति दो, मुझे कृष्ण की भक्ति दो, हंसते हंसते वापस आ जाओ। बिल्कुल किसी आत्मग्लानि के साथ वापस नहीं आना कि अरे मैं देवता लोगों के मंदिर में गई। नो, डोंट डू सच थिंग्स, ऑलराइट। लड़कों को भी अगर जाना पड़ा तो उन्होंने भी ऐसे ही करना है। उन्होंने अननेसेसरी सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप अथॉरिटी बन जाते हो, जिस दिन आप लीडर बन जाओगे फैमिली के, तो बंद करो ये सारे रिचुअल्स घर पे। लेकिन जब तक माता पिता की अथॉरिटी है, दादी दादा की अथॉरिटी है, तो उनकी अथॉरिटी का मान सम्मान करना, वो जो बोलते हैं चुपचाप सुनना, मन में हरे कृष्णा बोलना, और भगवान से, कोई भी देवता के पास जा रहे हो उनसे भक्ति मांगो, दैट्स ऑल। फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस, Yes, Mataji. गुड। इस श्लोक के बाद ना कोई ऐसे मेरे पास आना नहीं, बोलना नहीं कि भगवत गीता में तो लिखा है देवी देवताओं का पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने सारी देवी देवता पानी में बहा दी। मुझे याद है पुणे में हम एक ग्रुप में थे, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ये सुना उसने घर जाके अपने घर के सारे देवी देवता वो बहा के आई थी ये श्लोक के बाद। उसके बाद इतना ज्यादा उनके घर में इशू हो गया था। तो ऐसे सारे काम नहीं करने हैं, एकदम ही ज्यादा रिबेलियस नहीं बनना है, बैलेंस करके चलो। एज लॉन्ग एज आप देखो, इस श्लोक का बेसिक कीवर्ड सोचो। इस श्लोक में क्या है? When your intelligence is come out of dense forest of illusion, your, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। योर मतलब आप कथा सुन रहे हो सकता है आपके माता पिता, दादी दादा, नानी नाना कथा नहीं सुन रहे, तो ये सब कुछ किसके ऊपर चल रहा है? योर इंटेलिजेंस। जो ये कथा सुन रहा है उसके इंटेलिजेंस पे कृष्णा संस्कार कर रहे हैं, उसको डिल्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं, माया के पर्दे से बाहर निकाल रहे हैं। पूरे परिवार को कृष्णा नहीं निकाल रहे फिलहाल। कृष्णा अभी सिर्फ आप लोगों पर फोकस कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार अगर कथा नहीं सुन रहा है तो उनको डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो कथा अभी नहीं सुन रहे हैं, उनके सामने भगवत गीता नहीं है। अगर आप अपने इंटेलिजेंस को डिल्यूजन से बाहर निकलने के बाद उनको डायरेक्टली अप्लाई करने बोलते हो, तो उनका तो ये स्टेप मिस हो गया ना, आपके घर वालों का। उनके इंटेलिजेंस को डिल्यूजन से बाहर नहीं निकाला, लेकिन आपने उनके देवता बाहर निकाल दिए। वो गुस्सा नहीं होंगे? वो रिटेलिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, और बहुत ज्यादा घर में क्लेश हो जाएगा। तो आप अपने इंटेलिजेंस पे फोकस करो, दूसरों को इंटेलिजेंस वो ले लेंगे अपनी जिम्मेदारी। आपने नहीं लेनी दुनिया के इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी। आप अपने इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी लो, जिसको आपके इंटेलिजेंस से सीखना है वो आ जाएंगे। सो योर इंटेलिजेंस एंड योर गेटिंग आउट ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, इस पे फोकस करो कि मुझे इससे बाहर निकलना है। एक बार आप हेड से बाहर निकल गए, अपने हेड में जो सोच के रखा है उसमें से आप बाहर निकल गए, और आपके लिए आ गया आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मी, आई थिंक हरे कृष्णा महामंत्र इज सफिशिएंट फॉर मी, अगर ये भी कंक्लूजन तक आप आ गए ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अल्टीमेटली सारे मंत्र एंड होते हैं हरे कृष्णा महामंत्र में। इट इज लाइक हरे कृष्णा महामंत्र एक ओशन है, और ब्रह्मांड के सारे मंत्र नदियों की तरह है। चाहे आप अनलिमिटेड इनन्यूमरेबल नदियां लाओ, रिवर्स लाओ, सारे रिवर्स मिलते हैं ओशन में। वैसे सारे मंत्र मिक्स मिक्स होकर जो फाइनल वाइब्रेशन निकलती है वैकुंठ में, वो यही निकलती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एक बार मैं पढ़ रही थी, मुझे पता करना था कि ये मंत्र कहाँ से आया है। सो बुक्स रीड करते 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 आई रीच्ड एट अ स्टेज जहाँ पे एक पॉइंट पे मुझे पढ़ने को मिला कि जब सारे वेद शास्त्र निकले थे भगवान के यहाँ से, सारे वेद शास्त्रों को मिक्स किया, सारे वेद इकट्ठे बोलने लग गए। सडनली दे स्टार्टेड टॉकिंग जस्ट टुगेदर, और सप्तऋषि निकले, सप्तऋषि ने भी इकट्ठे बोलना शुरू किया। कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सबको सिर्फ बोलना ही बोलना है। सप्तऋषियों ने सारे शास्त्र पढ़े, वेदों से सब कुछ सुना, और उन्होंने भी पैरेलली साइमल्टेनियसली बोलना शुरू किया। ये नहीं कि पहले मैं बोलता हूँ फिर तू बोल, नहीं,
यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ईशोपनिषद, जितने भी उपनिषद है पुराने, सारे डीटीज ने इकट्ठे इकट्ठे बोलना शुरू किया। और सारे मंत्र अचानक से ब्रह्मांड में ऐसे घूमने लग गए कि किसी को केओस समझ में ना आए। और थोड़ी देर बाद जो मंत्र निकला वो था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है? सारे स्क्रिप्चर्स को इकट्ठे करो, इनकी डीटीज है, ये सारे पर्सोनिफाइड ह्यूमन फॉर्म जैसे है ये लोग सब। ये सब इकट्ठे जब गाते हैं अपना अपना ज्ञान, सारे श्लोक जब मिक्स हो जाते हैं और तब जब साउंड निकलता है तो वो हरे कृष्णा महामंत्र का साउंड निकलता है। और जब वो साउंड निकला ब्रह्मांड में, सब लोग शॉक हो गए कि सब लोग जब सारे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे आके सारे श्लोक इकट्ठे गाते हैं तो ज्ञान योग हठ योग में मिक्स हो जाता है, हठ योग ध्यान योग में मिक्स हो जाता है, ध्यान योग भक्ति योग में मिक्स हो जाता है, सारे योग मिक्स हो जाते हैं और फाइनल आउटकम हरे कृष्णा महामंत्र। सब लोग शॉक्ड थे कि ये कैसी वाइब्रेशंस आ रही है, ये कैसी आवाज आ रही है। एंड देन ये साउंड, फिर भगवान अपीयर हुए, भगवान ने उनको बोला ये वही आवाज है जो नित्य काल से वैकुंठ में गूंजती हुई आ रही है और गोलोक में गूंजती हुई आ रही है। दैट डे आई अंडरस्टूड कि प्रभुपाद ने हमें कोई साधारण हीरा नहीं दिया है, प्रभुपाद ने हमें गोलोक वैकुंठ से आने वाला हीरा दिया है। हमें ऐसे लगता है कि हमारे आचार्यों ने ये मंत्र बनाया है या फिर भागवतम में लिखा है इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो। नो, हमारे आचार्यों ने सीधा वैकुंठ से इंपोर्ट करके लाया हुआ है यहाँ पर। एंड दे आर गिविंग दिस डायमंड। इसलिए बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को हमारे प्रभुपाद कहते थे कि हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा कैसे लौटाऊं? आपने हरे कृष्ण महामंत्र जो मुझे दिया है, आपने मुझे हरि नाम दिया है। और स्पेसिफिकली प्रभुपाद कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कि मैं चाहूं भी तो आपकी कृपा में लौटा नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जिससे कि आपने जो कृपा की है मुझ पे वो मैं आपको थैंक यू बोल पाऊं, क्योंकि आपने तो हरे कृष्णा महामंत्र दिया। ये महामंत्र हमें एक्सेसिबल होता ही नहीं क्योंकि ये ऊपर के ब्रह्मांड में ऊपर की लेयर में वाइब्रेट हो रहा है। जब सारे शास्त्र इकट्ठे बोलने लग जाते हैं, सारे श्लोक मिक्स हो जाते हैं, सारे साउंड मिक्स हो जाते हैं और ये निकलता है। और ऊपर से वैकुंठ से और गोलोक में भी सेम चल रहा है। नाउ दैट इज द सीक्रेट ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। अब जिस दिन आप इस कंक्लूजन पे आओगे ना, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। फिर आप चाहे नंदी के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, गणेश जी के मंदिर में जाओ, चाहे माता के मंदिर में जाओ, 9 देवी दर्शन कर लो आप हिमाचल जाकर, वैष्णो माता चले जाओ आप, फिर आप केदारनाथ चले जाओ, जहां जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके मन में आपने कंक्लूड, आपको पता चल गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र मेरा फुल स्टॉप है, मैंने यहीं पे आकर रुकना है, इसके आगे कुछ नहीं है और इससे पीछे मुझे मुड़ना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक। और हरे कृष्णा महामंत्र के पास आकर मेरा सारा रिसर्च रुक जाता है, मेरा इंटेलिजेंस की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, इंट्रिगनेसी चली जाती है मेरे अंदर से। जिस दिन आप इस संतुष्टि वाली स्टेज पर पहुंचोगे ना, उस दिन आपके अंदर से आएगा आई थिंक दिस इज इनफ, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। उस दिन आपको माधवेंद्र पुरी जी के प्रेयर का मतलब समझ आएगा। अलम मन्ये कि मन्ये न मे, अलम मन्ये न कि मन्ये न मे, इस लाइन का मतलब आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आपको हरे कृष्णा महामंत्र पे आप जीरो डाउन करोगे पूरी लाइफ में। बहुत सारे लोग हरे कृष्णा महामंत्र भी करते हैं, ओम नमः शिवाय भी करते हैं, सब कुछ इकट्ठे इकट्ठे चल रहा होता है। सुबह सुबह हनुमान चालीसा भी करेंगे, शाम को कुछ और करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बट यू हैव टू समवेयर, लाइफ में आपको ठहराव चाहिए, कहीं पे तो आपको ठहरना पड़ेगा। माँ एक है, आप दुनिया भर की औरतों से मिलो, आपकी माँ है, आपको अपनी माँ से प्यार है, एक ही माँ है, एक ही पिता है, मंत्र भी एक ही है, भगवान भी एक ही है। अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अब हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स पाने के लिए और 4 लोगों के सामने, 4 देवताओं के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एक ही है जो है, एक को कृष्ण, एकला कृष्ण, एकला कृष्ण, एकला कृष्ण, एक को नाम हरि नाम, एक को नाम हरि नाम, एक को नाम हरि नाम, दैट्स इट।
ये कंक्लूजन पे आना बहुत जरूरी है। माई सेल्फ आई रिमेम्बर आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, जहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था सिर्फ एक मंत्र पे जीरो डाउन करना, क्योंकि आसपास सारे आध्यात्मिक लोग घूमते थे मेरे, हर एक जन का अपना अपना कुछ ना कुछ फंडा था। मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, फाइनली मैंने जीरो डाउन किया। ऐसा नहीं है कि मैं जाप नहीं करती थी, मैं जाप करती थी। आई हैड माई ओन क्वेश्चंस एंड आई वर्कड अराउंड देम। सो आपको भी यहाँ पे पता चल गया है कि आपको इस स्टेज पे पहुंचना है जिंदगी में। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। मुझे ऐसे लगता है मेरी जिंदगी हरे कृष्णा महामंत्र से शुरू होती है, मेरी जिंदगी हरे कृष्णा महामंत्र पे ही खत्म होती है। इसके बीच में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तो अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी की तरह बनना है। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी हमारे शिल प्रभुपाद के गुरु भाई है, और वो वृंदावन में रहते थे, और उनसे कोई भी कुछ भी बात करता था ना, वो रिस्पॉन्स में सिर्फ हरे कृष्णा बोलते थे। कुछ भी दुखी बात करने आए तो भी हरे कृष्णा, अच्छी बात करने आए तो भी हरे कृष्णा। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी ने जीरो डाउन किया था कि मेरी लाइफ का मकसद, मेरी लाइफ की जर्नी और मेरी लाइफ की शुरुआत इसी मंत्र से शुरू होती है, इसी मंत्र पे खत्म होती है। ये वाला कन्विक्शन हमारे पास आएगा उस दिन, हमें माधवेंद्रपुरी के लाइन का मतलब समझ में आएगा। आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर मी। मैं सच बता रही हूँ, आपने आज तक लाइफ में अपने आप को बोला नहीं होगा यूनिफॉर्म्स को देखकर आई थिंक दिस इज सफिशियंट। आपके सामने नया यूनिफॉर्म आया ना तो भी आप ले लोगे, मॉम ने मम्मा ने आपके लिए नया ड्रेस लाया तो भी आप लोगे, किसी ने नई वाटर बॉटल लाई तो भी आप लोगे, आपके पास है घर पे बॉटल तो भी आप लोगे, आपको नया टिफिन किसी ने दिया, मम्मा पापा ने दिया, उनको अच्छा लगा, आप फिर भी लोगे। आप कभी नहीं बोलोगे आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर मी, आई डोंट वांट इट, कीप इट नियर योर सेल्फ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नो बडी सेज दिस थिंग्स, बट दिस इज द ओनली स्टेज दैट वी नीड टू रीच। आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर मी। डायरी में लिखो, जहां लिखना है लिखो, लेकिन माधवेंद्र पुरी की इस प्रेयर को अपने दिल पे बहुत परमानेंटली लिख लो कि मुझे ऐसी स्टेज पे पहुंचना है जहां पे मैं सफिशियंसी फील करूं। ठीक है, आगे का पॉपॉट हम कल करते हैं। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।